बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी स्टूडेंट, आज हम यूनिट 15 एसी सर्किट के कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। इसमें सिर्फ आप लोगों ने ग्राफ ड्रा करना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के दरमियान। तो स्केच क्वेश्चन है, sketch a graph of electromotive force induced in inductive coil again rate of change of current. So what is the significance of the gradient? देखिए ग्राफ में देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इस पे एक्स एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, वाई एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चूँकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट होगा। सो व्हेन करंट इन इंडक्टिव कॉइल चेंजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज द कॉइल चेंजेस। एज अ रिजल्ट an electromotive force is induced in the coil whose magnitude is directly proportional to the rate of current in the coil. So thus if we draw a graph between electromotive force and di by dt, so we get a straight line you can see on the figure. The gradient of the graph is given by, gradient means slope. So यहाँ पे ये स्लोप जो है देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है डी आई बाई डी टी और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो हम जानते हैं कि ये पाई के सामने ये परपेंडिकुलर है एंड दैट इज बेस। सो ग्रेडियंट इज इक्वल टू टेंजेंट पाई परपेंडिकुलर बाय बेस। सो ई डिवाइडेड बाय डी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो बराबर है ई डी आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। सो सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट, इसका क्या अहमियत है? इन केस ऑफ सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना वी हैव ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब एल इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी, अगर 1 और 2 को हम कंपेयर करें तो हमारे पास ग्रेडियंट एल के बराबर आएगा और एल को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन और इसकी यूनिट क्या है? हेनरी। सो इक्वेशन नंबर 3 shows that the significance of the gradient is that it gives us the value of the self inductance of the coil. Next question है question number 2. Current and voltage provided by an AC generator are sometime negative and sometime positive. Why for an AC generator connecting to a resistor power can never be negative? Second है explain using sketch graph why the frequency of variations of power in AC generator is twice is that of current and voltage. So देखिए बच्चे आंसर पार्ट ए का, we know that the power in terms of current is given by P is equal to I square R, while in terms of voltage the power is given by P is equal to V square divided by R. So now we know that the alternating current in voltage consists of positive and negative half cycle, but the power of the generator can never be negative. So it is because according to equation number 1 and equation number 2, for any value of I and V, the terms I square and V square remains positive. So according to equation number 1 and equation number 2, the power always remains positive, so it can never be negative. Part B, we know that the average power is given by, average power is equal to the product of IRMS and VRMS. अब IRMS की वैल्यू है IM डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2, VRMS की वैल्यू है VM डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट टू मीन्स आई एम इंटू वी एम। अभी यहाँ पे बच्चे ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट 2 है, ये स्क्वायर रूट 2 2 ज़ार 4, स्क्वायर रूट 4 2 के बराबर है। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये स्क्वायर रूट नहीं है इस पे,
तो ये आ जाएगा 2 square root p Im Vm. So equation number 3 shows that the frequency of variation of power in AC generator is twice is that of the current and voltage. इसके बाद जो क्वेश्चन है ये बच्चे अक्सर पेपर में आ चुका है. इन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, what determine the gradient of a graph of inductive reactance against frequency. So the gradient of a graph of inductive reactance against frequency determine the inductance of the inductor. देखिए बच्चे, the relation between inductive reactance and frequency is given by, हम जानते हैं कि inductive reactance बराबर होता है ओमेगा एल, ओमेगा का बराबर है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ एल. अब यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रिक्वेंसी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है. तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो फ्रिक्वेंसी एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया है, इंडक्टिव वाई एक्सिस पे है, तो फ्रिक्वेंसी एफ और एक्स एल यहाँ पे जो हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो है टेंजेंट फाई परपेंडिकुलर बाय बेस एक्स एल डिवाइड बाय एफ. सो ग्रेडियंट इज इक्वल टू एक्स एल डिवाइड बाय एक्स एफ. अब इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास जो एक्स एल है वो है 2 पाई एफ एल. सो एक्स एल 2 पाई एक्स एल डिवाइड बाई एफ 2 पाई एफ एल. इक्वेशन नंबर 3 और 2 से हमने ये हासिल किया कि ग्रेडियंट 2 पाई एल के बराबर है. सो इक्वेशन नंबर 4 शो दैट फ्रॉम द ग्राफ ऑफ एक्स एल एंड एफ वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एल ऑफ द इंडक्टर. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, ये क्वेश्चन बार बार पेपरों में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डज डबलिंग द फ्रिक्वेंसी इफेक्ट द रिएक्टेंस इंडक्टर एंड कैपेसिटर. देखिए हम जानते हैं कि इंडक्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होता है एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल. अब अगर जनरल हम देखें फ्रिक्वेंसी को डबल करें इसमें तो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस डबल हो जाएगा. इसी तरह अगर हम देखें सेक पार्ट बी में कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर बराबर होता है 1 बाय ओमेगा सी. अब ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई एफ, तो यहाँ पे इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी के रिसिप्रोकल है. तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को हाफ करें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल करें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास हाफ हो जाएगा. इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5, इफ द पीक वैल्यू ऑफ अ साइन वेव इज 1000 वोल्ट, सो व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू. इफेक्टिव का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. इफ द पीक वैल्यू ऑफ अ साइन वेव इज 1000 वोल्ट देन द इफेक्टिव वैल्यू विल बी इक्वल टू 707 वोल्ट. रीज़न देखिए, पीक वैल्यू हमें दिया है दैट इज हाउ मच, वी नॉट 1000 वोल्ट है मैक्सिमम वोल्टेज. इफेक्टिव वैल्यू हमने मालूम करना है. सो वी नो दैट वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2. तो वी नॉट स्क्वायर रूट 2 पे डिवाइड करें तो 0.707 वोल्ट. तो यहाँ पे वी आर एम एस हमारे पास होगा 0.707 मल्टीप्लाई 1000 वोल्ट, तो 707 वोल्ट. क्वेश्चन नंबर 7 अक्सर बच्चे पेपर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट. Show that the reactant is measured ohm for both inductor and capacitor. देखिए, the reactance for both inductor and capacitor are measured in ohm. We know that inductive reactance is given by, inductive reactance को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि the position offered by inductor to the flow of AC current is called inductive reactance of the inductor. यहाँ पे opposing force आ गया तो इसका यूनिट क्या होगा, ओहम. सो एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल. अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड करें बोथ साइड आई एम पे, हमारे पास आ जाएगा एक्स एल इज इक्वल टू आई एम ओमेगा एल डिवाइड बाई आई एम. अब हम जानते हैं कि वी एम हमारे पास बराबर है आई एम ओमेगा एल. तो अगर हम इक्वेशन 3 को 2 में पुट करें तो हमारे पास की वैल्यू बच्चे आ जाएगी एक्स एल is equal to Vm divided by Im.
सो एक्सएल वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है और करंट का एम्पियर, सो वोल्ट पर एम्पियर ओहम के बराबर है. So thus ohm is the unit of inductive reactance which represent the opposition to the flow of current in inductive circuit. For capacitive circuit, we know that X is equal to 1 by omega C. अब अगर इसको हम Vm से क्या करें, Vm से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास Vm Im की वैल्यू आ जाएगा Vm ओमेगा C. तो अगेन अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो वोल्ट पर एम्पियर विच इज ओहम. सो इंडक्टिव रिएक्टेंट और कैपेसिटिव रिएक्टेंट दोनों ओहम के यूनिट में मेजर किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ईसीजी. ईसीजी का मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. सो ईसीजी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम which is used for diagnosing the condition of heart. Working of ECG क्या है? It work on the detection and amplification of smallest electrical changes on our skin. The electrical changes on skin take place due to depolarization of heart muscle during heartbeat. During heartbeat, a small voltage difference occur between 2 points on our skin. The small voltage difference can be recorded with the help of electrodes which are placed on various parts of the body. Finally, the information about the heart condition are printed on a paper in the form of wavy curve. So thank you, students.